बर्मिंघम की लेडीवुड कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी उम्मीदवार शाज़ना मुजम्मल को शबाना महमूद के ख़िलाफ़ उतारा है। ये वो सीट है जहाँ पर पिछले कई दहाइयों से यहाँ पर जो लेबर का स्ट्रॉन्ग होल्ड कंसिडर होती है ये सीट, लेकिन अब की बार जो शाज़ना मुजम्मल आई है मिल्टन कीन्स के एरिया से, वो इस अज़म के साथ यहाँ पर आई हैं कि वो जो लेबर पार्टी को उनसे वो ये सीट छीनेंगी। लेकिन जो मुख्तलिफ ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, वो ओबियसली जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है उनके लिए भी तशवीशनाक हैं। हम जानते हैं शाज़ना मुजम्मल से और उनके साथ हैं टोरी पार्टी के यहाँ पर काउंसलर हैं वहीद रासिब, जो बहुत अरसे से कई दहाइयों से यहाँ पर रह रहे हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली जो टोरी पार्टी की क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं इन इलेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू यू शाज़ना, you are standing against the Labour candidate here, and traditionally Labour has a history of winning from here. So what is your plan of winning this seat this time? So it is, for the last 14 years we've had, of course, as you mentioned, a Labour MP here, and as you can see things have deteriorated, and that's why I want to stand here to make a difference and make that change happen. A fine example is the fact that we have a Labour leadership here, so we have a Labour MP, we have a Labour Council, we have a Labour Police and Crime Commissioner under whom knife crime is the highest, and of course now we have a Labour Mayor who's going to put up the bus fares in this area. So I think it's high time that people think about what they are voting for, think about the change that they want, think about the best for this area. And that's why I am standing here. What is the change that Tories can deliver now which they have failed to deliver, for example, in the last 14 years or so? As a Conservative candidate, I'm coming with a fresh view, fresh plans. I'm hoping to bring in a lot of investment, work with the private sector as well as the government to bring in the relevant funding and the grants, that we need to improve these areas and provide support and opportunities for the people to live better. You have come from quite far to stand in this election, so you are not a local person, but how is your campaign going locally? It's been great. I've spoken to a lot of residents. They've been very welcoming. I am a councillor in Milton Keynes, but I come here all the time. So I have family and friends here. So we visit Birmingham, and I've seen Birmingham deteriorate. So the campaign, we've been knocking on doors, and what we've been hearing on the doorstep is the Labour MP is not visible, is not present, and that they are certainly looking for change. So it's been quite positive for me on the doorstep. Thank you. वहीद साहब आप काउंसलर हैं जो लोकल एरिया से, यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जो टोरी पार्टी के इस वक्त जो एक ऐसी जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्रेडिशनली लेबर एरियाज़ हैं, क्या इस वक्त उनकी ओवरऑल सिचुएशन है टोरी पार्टी की, कंजर्वेटिव पार्टी कैंडिडेट? बेसिकली जो हम लोग कंपेन कर रहे हैं वो हम लोकल इश्यूज़ पे कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी लेबर पार्टी के काउंसलर्स हैं, जहाँ पे भी लेबर पार्टी के एमपीज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने हमेशा लेबर पार्टी के लोगों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने वोट, they took the vote for granted. So it's about to change, because हमें change चाहिए। लोग हमें कह रहे हैं कि ये लोग 15-20 साल से बैठे हुए हैं और हमें उसी वक्त नज़र आते हैं जब इनको वोट चाहिए। सो दूसरा ये है कि इस वक्त जो हमारी कंजर्वेटिव पार्टी है उन्होंने भी काफ़ी गलतियां की हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट है, उन्होंने भी गलतियां की हैं, तो हम ये समझते हैं कि इन गलतियों को दोहराया जाएगा, मगर सबसे ज़रूरी है कि हमें चेंज चाहिए। पिछले तकरीबन 14 साल से तो टोरी पार्टी की हुकूमत थी, तो ये जो आप सारी चीज़ें बता रहे हैं कि फ्यूचर में वो लाएंगे, आखिर वजह क्या बनी कि पिछले जो तकरीबन 14-15 साल में वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो नहीं सकी? देखें जी, ये सबसे जब से इलेक्शन हुए हैं 2019 में बोरिस जॉनसन साहब आए, उसके बाद फिर पेंडेमिक आ गया और ये दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। उसने फाइनेंशियली भी हम गवर्नमेंट पे काफ़ी बर्डन डाल दिया। उसके बाद ये यहाँ पे नहीं पूरे वर्ल्ड में एक इकनॉमिकली इफ़ेक्ट हुआ। अभी देखें इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 2% और जो हमारी पॉलिसी है, मगर मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी को जिस तरह लोगों को बताना चाहिए था कि हमने क्या अचीव किया है, मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी पब्लिक को बता सकी है कि ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। मिनिमम वेज देख लें, उन्होंने इंक्रीज़ किया है। टैक्स 12,500, यू डोंट पे नो टैक्स। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना लोगों से टैक्स लिया जाए इतना बेहतर है। अभी जब लेबर आएगी तो एवरेज 2,000 पाउंड टैक्स बढ़ जाएगा वर्किंग क्लास लोगों के लिए। तो अभी हम I think I strongly believe that our party will review its policy and how they move forward.
बरतानिया में लेबर और कंजर्वेटिव तो बड़ी दो जमातें शुमार की जाती है, लेकिन उनके साथ साथ ग्रीन्स और लिबरल डेमोक्रेट्स जो तीसरे और चौथे नंबर की पार्टीज़ इनको कंसिडर किया जाता था। ख़ास तौर पर लिबरल डेमोक्रेट्स ने पिछले तकरीबन 20 सालों में जितने भी इंतखाबात हुए उन्होंने हमेशा तकरीबन हर हल्के से उन्होंने जो तीसरे नंबर के उन्होंने वोट लिए और पार्लियामेंट में भी उनकी नुमाइंदगी हर साल बढ़ी है। लेकिन अब की बार इन इलेक्शन में जो 4 जुलाई को होने वाले इलेक्शन हैं, जो पार्टी ऑर्डर है वो काफ़ी हद तक अपसेट नज़र आ रहा है, इसलिए कि लेबर और कंजर्वेटिव के बाद जो रिफॉर्म पार्टी है, जो कि एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, जो टोरी पार्टी का ही जिसको एक ब्रेक अवे फैक्शन समझा जा रहा है, वो अब दूसरे और तीसरे नंबर की पोजीशन के लिए वो टोरी पार्टी के साथ इस वक्त वो पोलिंग्स में उसकी फ़ाइट है। और इस तरह जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं वो कंसिडर ये किया जा रहा है कि वो चौथे नंबर की पार्टी हैं, लेकिन लिबरल डेमोक्रेट्स को पाकिस्तानी और एशियन बहुत सारे एरियाज़ में सिग्निफिकेंट उनको इससे पहले सपोर्ट हासिल रही है। हम जानते हैं यहाँ पर जो बर्मिंघम में मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उससे जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं लिबरल डेमोक्रेट्स के, उनसे बात करते हो जानते हैं कि इस वक्त जो लिबरल डेमोक्रेट्स की यहाँ पर चांसेस क्या सर, जो रिफॉर्म पार्टी के आने के बाद और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ पार्टीज़ की जो इस वक्त पोजीशन सामने आ रही है, लिबरल डेमोक्रेट्स की यहाँ पर ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? देखें जी कि जो रिफॉर्म पार्टी है बिल्कुल नई पार्टी है और मेरे ख्याल में यहाँ पर ख़ास करके मिड लाइन में वो इतनी बड़ी कोई अपसेट नहीं कर सकेगी। और अगर हो सकता है कि लंदन या दूसरी तरफ हो सकता है कोई कामयाबी 1-2 सीट से ज़्यादा उनकी अभी जो सर्वे आ रहे हैं उनमें 2 या 3 सीट की वो कह रहे हैं। लिबरल डेमोक्रेट जो है इसकी पहले जो है तकरीबन 65 सीट थी, अब जो इंतखाब हो रहे हैं इसमें 55 सीट पर जो है ना यकीनन इनकी कामयाबी नज़र आ रही है और लोगों का रुझान भी इनकी तरफ बढ़ रहा है। आप यहाँ पर जो लिबरल डेमोक्रेट्स की कैंपेन कर रहे हैं, आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? मुझे अच्छा, हमारे ये जो जहाँ हम डोर स्टेप पर जा रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना लिब डेम का लोग नाम ले रहे हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका भी और नाम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर बड़ा अपसेट होने की उम्मीद है कि लिब डेम की जो लोग पॉलिसी पर अभी बात कर रहे हैं। पहले तो हमारी ट्रेडिशन थी कि और हम जो हमारे बाप ने मेरे दादा ने दिया था लेबर को, तो वो सूरत हाल ख़त्म हो चुकी है। नौजवान सामने आए हैं और उन्होंने हालात को बदल कर रख दिया है। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आने वाले इलेक्शन में जो है मेरे हिसाब में 2-3 सीट जो है वो लेबर से जा सकती है। डोर स्टेप पर लोग हमारी बात सुनते हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी भी सुनते हैं, लेकिन लेबर वालों को हर जगह बड़ी सख्त मुखालफत का सामना है। उन्होंने निकलना वजह क्या, कौन से ऐसे इशूज़ है जिनके ऊपर लेबर को मज़ामत हो रही है? लेबर का खास करके जो मसला फ़लस्तीन है और गज़ा पर जो उन्होंने और उनके लीडर ने जो स्टैंड लिया, मिसाल उन्होंने ये कहा कि पानी, खुराक और बिजली बंद करना ये इज़राइल का हक़ है। क्या वो इंसान नहीं है? इस मसले की वजह से जो यहाँ पर लोग जो है ना इनको वोट देने के लिए बल्कि इनको देखने के लिए नहीं तैयार। अच्छा, ये तो बात हो गई, लेकिन इसमें क्या इस पूरी सिचुएशन में क्या लिबरल डेमोक्रेट्स को कोई नेट गेन्स नज़र आ रहे हैं? हमारा ख्याल है कि हो सकता है 1-2 जगह हमें मिडलैंड में, बल्कि 2-3-4 जगह भी हो सकता है। 4 सीट वेस्ट मिडलैंड में 4 सीट लेफ्ट ने टारगेट की हैं। कैनलवर्थ, नॉर्थ शराबशर, साउथ शराबशर, स्टैफोर्ड अपॉन वे। इंशाल्लाह हमें इतनी उम्मीद है कि इस दफ़ा इंग्लैंड में 55 सीट लेबर ने टारगेट की हुई हैं, जिनमें हमें उम्मीद है 48-50 सीट हम ले लेंगे और हाउस ऑफ कॉमन में हमारी पोजीशन तीसरी आ जाएगी। जी, क्योंकि पहले SNP स्कॉटिश नेशनल पार्टी तीसरी थी, तीसरी पोजीशन हम ले लेंगे। भाईजान बताएं कि 4 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में आप किसको वोट दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी देखें, पार्टीज़ काफ़ी यहाँ आजमाई हैं पहले लोगों ने, तो लेकिन मसाइल का कोई हल नहीं निकला। लेकिन अभी हमने सारी कम्युनिटी ने, जो हमारी मेजॉरिटी है, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, अजीज़ व क़रीब हैं, उन्होंने यही फ़ैसला किया है कि लिबरल डेमोक्रेटिक है ना, इसको एक चांस दिया जाए, मे भी ये हमारे मसाइल हल कर दे। और देखो आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो यही चाहती हैं कि हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा एक बहरान
बहरान की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। उसमें महंगाई है, दूसरे ये जो अभी चल रहा है कि बेनिफिट्स का मसला है, ये कम हो गए हैं, वो काम के इश्यूज़ हैं। लेकिन अभी हम यही चाहते हैं कि ये आएँ और हमारे ये मसाइल हल करें, और स्पेशली जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, हाँ। उनके काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं, इमिग्रेशन के इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको आगे वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे जिस तरह पहले होता था, काम नहीं मिल रहे, उनके आवर कम कर दिए हैं, उनके काफ़ी इश्यूज़ हैं। अच्छा, इकोनॉमी का ओवरऑल तो मसला, लेकिन आप अपनी इकोनॉमी के बारे में बताएं। आपके माशाल्लाह कुल्फियाँ भी आप माशाल्लाह ठीक ठाक, में काफ़ी देर खड़ा रहा हूँ, आपकी कुल्फियाँ तो बराबर बिक रही हैं, आपकी चाट भी बड़ी मसालेदार है, वो भी बिक रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, लेकिन हम ज़ाती इकोनॉमी बात ठीक करना चाहिए कि मेजोरिटी प्रॉब्लम्स में है। चंद दिनों के बाद जहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं और यहाँ पर इस एरिया में हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कैंडिडेट्स हैं काफ़ी एक्टिव हैं, तो क्या चीज़ इन इंतखाबात में आपके दिमाग पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेकर आप जो वोट देंगे? सर, मैं वोट दूंगा जो मुसलमानों को फ़लस्तीन के लिए बोलेगा, उसको वोट दूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो वैसे तो हमारे इधर 2-3 पाकिस्तानी भी खड़े हैं, तो वो भी आए थे MPA के लिए, तो इंशाल्लाह वोट देंगे जो मुसलमानों के हक़ के लिए बेहतर हो। तो अगर आप ये भी बता दें कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी है जो इस वक्त फ़लस्तीन के इशू पे या मुसलमानों या पाकिस्तानियों के इशू पे स्टैंड ले रही है? ये पार्टी तो अभी मेन पार्टी तो कोई भी नहीं स्टैंड लेती, लेकिन ये कि पाकिस्तानी जो बंदे खड़े हैं वो कहते हैं जी हम मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे, हमें जिताएं। तो हम सारे ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना कोशिश करेंगे किसी पाकिस्तान नए लोग जो है पुराने वालों से नहीं मुतमिन है, उनकी पॉलिसियाँ तो सारी एंटी मुसलमान थी, तो अब नई पार्टी को किसी को आजमाएंगे। किसको वोट दे रहे हैं, कौन सी आपकी फेवरेट पार्टी है और क्या वजह आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उसको वोट देंगे? यहाँ पे तो हम लोग लेबर पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत ताउन करता है, एशियन पीपल के साथ बहुत ताउन करता है। काफ़ी टाइम से हम लोग लेबर पार्टी को सपोर्ट करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, आप बताएं कि इन इलेक्शंस में आपको कितना अरसा हुआ यहाँ पर आए हुए और किसको आप वोट दे रहे हैं? मुझे तकरीबन इधर आए हुए 2 वीक्स हुए हैं, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा अपने सर्वे कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जो मुझे बेहतर लगेगा अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने इधर रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, तो उसको इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन वोट कास्ट करूँगा। तो इंशाल्लाह मैं अपने सर्वे जारी रखूँ। लेबर पार्टी का सुना है वो थोड़ा सा इधर वर्क अपना कर रही है, उसके थोड़े से पॉइंट्स मैंने रीड आउट किए हैं जो मुझे मुफीद लगे हैं अपने